Hello dear student, I am Munagar Vimal. Here in Mathematics of Standard 9th, we are going to learn chapter number 15, Probability, and it is part number 2. In part number 1, we have discussed some properties of probability and also solve some example. Now we are going to learn example number 8 to 10 and also we solve exercise number 15.1. So let we go. Here given example number 8, an insurance company selected 2000 drivers at random, that is without any preference of one driver over another in a particular city to find a relationship between age and accident. The data obtained are given in the following table. Now here one table is given and also the age of driver given is here. Okay, age of drivers are in years 18 to 29, 30 to 50 and above 50, and also in a year accident done by them or are given in table. If a zero accident, there is no any accident, then between these all ages there are given some numbers, and if there are one accident related according to a drivers, then given here in table. Now find the probabilities of following events for a driver chosen 8 random from the city. Now we are going to select drive the range of age of drivers, and we find the probability as given here. The first probability that we are going to find, being 18 to 29 years of age and having exactly 3 accidents in 1 year. तो यहाँ पे हम जो अ, एक साल के अंदर 18 से 29 के बीच में जिनकी उम्र आती है, उन ड्राइवर्स ने एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट, सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सीडेंट किए हैं, उन्हें उनकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे. द सेकंड वन इज being 30 to 50 years of age and having one or more accident in a year. तो यहाँ पे जो दूसरा वाला है हम क्या फाइंड करेंगे, 30 to 50 के बीच में जिनकी एज आती है, उन्होंने वन और मोर मीन्स एक एक्सीडेंट किया हो, वो भी 2 एक्सीडेंट किए होंगे तो भी, और 3 एक्सीडेंट और 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट किए होंगे तो भी उसका हम सम लेंगे, और देन आफ्टर we will find probability of given event. And third one is having no accident in 1 year. तो यहाँ पे जिसने भी एज नहीं देगी, लेकिन सिर्फ दिया गया है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसकी रेंज है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो यहाँ पे जो जीरो, तो यहाँ पे सारी की सारी उम्र के जो जीरो पे एक्सीडेंट है, सारी की सारी हम उसका सम लेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे. यहाँ पे जो टोटल आउटकम है वो कितने हैं, 2000. सो ये जो 2000 है वो हमारे यहाँ पे टोटल आउटकम होगा. सो लेट वी फाइंड the solution of given example. Total number of drivers are 2000. So first we find the number of drivers who are 18 to 29 years old and have exactly 3 accident in 1 year is 61. तो यहाँ पे हम पता है कि 18 to 29 के बीच में जो ड्राइवर्स है, उन्होंने सिर्फ एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट किए हैं, उतने कितने हैं, तो के 61 है. तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है. So the probability of driver is 18 to 29 years old with exactly 3 accidents is equal to 61 by the total number of driver are 2000, that is equal to 0.0305 and it is near about 0.0315. यहाँ पे हम जो राउंड फिगर है वो लिखेंगे, तो 0.031 प्रोबेबिलिटी है वो किसकी होगी कि जो 18 से 29 ईयर्स ओल्ड है और उन्होंने सिर्फ 3 एक्सीडेंट किए हुए, उसी का जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड किया है. दूसरा, द नंबर ऑफ ड्राइवर्स 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग वन और मोर एक्सीडेंट इन 1 year, दैट इज हमें जो एक और एक से ज़्यादा एक्सीडेंट किए उनका नंबर मीन्स 1, 2, 3 और 3 से ज़्यादा जो और 30 से 50 बीच में है, वो कौन से 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18 इज इक्वल टू 225. तो ये जो टोटल नंबर है हमें मिला. सो नाउ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दैट इज, सो
the probability of driver is 30 to 50 years of age and having one or more accidents is equal to 2 to 25 divided by 2000, which is equal to 0.1125 and it is near about 0.113। जो यहाँ पे लास्ट डिजिट है 5 उसे हम राउंड अप करके 2 में ऐड कर देंगे 1 तो हो जाएगा 0.113। थर्ड वन इज द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर। तो एक साल में जो 18 से लेके 50 से ज़्यादा जो उम्र वाले लोग हैं उनके द्वारा जो एक भी एक्सीडेंट नहीं किया उतने ड्राइवर कितने हैं? तो कि 440 प्लस 505 प्लस 360 तो इसका टोटल क्या हुआ 1305। तो अब हम यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या होगा therefore the probability of drivers with no accident is equal to 1305 divided by 2000 is equal to 0.653। तो इस तरह से किसी भी नंबर की किसी भी तरह की इवेंट दी गई होगी तो उसका हम इवेंट है वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल टेबल नंबर 14.3 एग्जाम्पल 4 चैप्टर नंबर 14। जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 है उसका जो टेबल है वो यहाँ पे हमें उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से हम उसे यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे विच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। मीन्स यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है मीन्स वो कितने हैं 38। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन इज find the probability that the weight of a student in the class lies in interval 46 to 50 kgs। मीन्स उन स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है जिनका वेट 46 और 50 kgs के बीच में हो। और नेक्स्ट वन इज give two events in this context, one having probability 0 and the other having probability 1। मीन्स हमें इस तरह की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मीन्स जीरो किसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमें पता है कि जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और दूसरा है कि हैविंग प्रोबेबिलिटी 1 मीन्स जो श्योर इवेंट और उससे हम कहेंगे सर्टेन इवेंट जो सर्टेन इवेंट है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जो टेबल चैप्टर नंबर 14 में जो टेबल दिया गया है कुछ इस तरह से कि वेट दिए गए हैं इन अ ग्रुप दिए गए तो 31 से 35 उसमें कितने स्टूडेंट है 9, 36 से 40 केजीज में 5 स्टूडेंट, 41 से 45 केजीज में 14 और इस तरह से 31 से 75 तक यहाँ पे जो उनका जो ग्रुप है दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे 38। तो हम पहली जो प्रोबेबिलिटी है कि जो वेट है वो किसके बीच में। So solution of given first example, the total number of student is 38 and the number of student with weight in the interval 46 to 50। तो यहाँ पे 46 to 50 में कितने हैं 3 स्टूडेंट है। तो इस तरह से हमें उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड होगी तो so the probability of weight of the a student in the interval 46 to 50 kgs is equal to 3/38 और उसका जब हम आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा 0.079। तो इस तरह से हम किसी भी इसमें से वेट में से किसी भी वेट का ग्रुप लेके उसमें से हम उस कुछ स्टूडेंट दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं उसमें से उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस कंसिडर द इवेंट दैट अ स्टूडेंट वेट्स 30 kgs since no student has this weight because here given a range of from 31 to 75 and the weight of below 31 is not given means this event is impossible, so the probability occurs of this event is 0। Similarly the probability of a student weighing more than 30 kgs हमें पता है कि more than 30 तो यहाँ पे सारे के सारे दिए गए 31 से 75 तक तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा 38 और उससे हम टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे 38 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो ये जो weight of student less than 31 that is impossible event and more than 30 that is it is certain event और sure event है तो उसका जो probability क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 10, 50 seats were selected at random from each of 5 bags of seats and were kept under standardized condition favorable to
germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were काउंटेड एंड रिकॉर्डेड एज फेलो के जो 5 बैग ली है उन 5 बैग में कुछ सीड्स है वो डाले गए थे। तो जो सीड्स डाले थे वो कुछ दिनों के बाद मीन्स 20 दिनों के बाद हमने देखा तो उनमें से कुछ जो बीज थे वो जनरेट हुए थे। तो जो जनरेट हुए बीज है उसकी जो रेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी है इस टेबल में दिए गए। तो बैग फर्स्ट में है कितनी तो के 40 सीड्स उसमें से जनरेट हुए। बैग 2 में से 45, बैग 3 में 42, इस तरह से पूरा का पूरा टेबल दिए गए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितनी है 5 है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एज गिवन हियर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ germination of first one that is more than 40 seeds in a bag, second one is 49 seeds in a bag, and third one is more than 35 seeds in bag means here given that first one is more than 40 seeds in a bag। more than 40 किस में है एक बैग नंबर 2 में 48, बैग नंबर 3 में 42 एंड बैग नंबर 5 41 मीन्स यहाँ पे 3 बैग्स ऐसी है कि जिसमें मोर देन 40 सीड्स है। दूसरा तो कि 49 सीड्स इन अ बैग, 49 किस में है एक भी में किसी में नहीं है तो उसका आंसर क्या आएगा 0। मीन्स एक जो है इम्पॉसिबल इवेंट होगी। मोर देन 35 सीट्स, 35 सीट्स में कि सारी की सारी बैग है वो उसमें 35 से ज़्यादा भी सीट्स है तो उसकी वो कैसी सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट बन जाएगी। तो सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ बैग्स इज 5। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 40 सीट्स germinated आउट ऑफ 50 सीट्स इज 3। तो 3 बैग ऐसी है जिनमें से 40 से ज़्यादा सीड से वो जर्मिनेटेड हुए तो 3। तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग दैट इज 3/5 एंड इसका आंसर क्या आएगा 0.6। नेक्स्ट वन नंबर ऑफ बैग्स इन विच 49 सीड्स जर्मिनेटेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पता है हम यहाँ पे पता है कि 49 सीड से एक भी में ये से जर्मिनेट नहीं हुए। तो नाउ the probability of germination of 49 seeds in a bag is equal to 0/5 and which is equal to 0। And third one is number of bags in which more than 35 seeds germinated is equal to 5। हमें पता है कि more than 35 है तो वो सारी की सारी बैग में 35 से ज़्यादा है तो उसकी टोटल नंबर कितना होगा 5। तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं सो दी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1। जो सेकेंड वन है वो इम्पॉसिबल इवेंट है और जो थर्ड वन है वो सर्टेन इवेंट और उसे श्योर इवेंट के भी सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिमार्क्स है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। इन ऑल द एग्जांपल अबव यू वुड हैव नोटेड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी एनी फ्रैक्शन फ्रॉम 0 to 1। हम यहाँ पे देखा कि सारे के सारे जो एग्जांपल लिए उनमें जो हमने जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड की है वो फ्रैक्शन में आई है और उनका जो आंसर है वो किसके बीच में तो कि 0 और 1 के बीच में। उसका आंसर 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है और उस दोनों के बीच में 0 और 1 के बीच में भी आ सकता है लेकिन 0 से कम और 1 से ज़्यादा नहीं आता। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 15.1। एग्जाम्पल नंबर 3 refer to example number 5 section 14.4 chapter number 14। find the probability that a student of class was born in August। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है और ग्राफ के अंदर कुछ इस तरह से द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त और इन अदर मंथ्स। ये यहाँ पे अपने जनवरी से दिसंबर तक जो स्टूडेंट है उनकी जो बर्थ डेट है वो यहाँ पे दी गई इस तरह से। जनवरी में तो के 3 स्टूडेंट है, फरवरी में तो के 4 स्टूडेंट है, मार्च में तो के 2 स्टूडेंट है। इस तरह से एक ग्राफ दिया गया है तो हमें फाइंड करना है कि दी प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। मीन्स यहाँ पे अगस्त में तो यहाँ पे देख सकते हो अगस्त में कितने तो 6 स्टूडेंट है वो उनमें से अगस्त में उसका बर्थ डेट है। सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कंसिडर्ड इज इक्वल टू 40। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40 है
और द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त इज इक्वल टू 6 है। तो प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट वाज बोर्न इन अगस्त इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंसिडर्ड इज इक्वल टू 6/14 इज इक्वल टू 3/20। तो ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, an organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicle in a family. The table is given here. जो 2,400 फैमिलीज है उनमें से जिन जिन की सैलरी कुछ इस तरह से यहाँ पे ग्रुप में दी गई है कि लेस देन 7,000, 7,000 से 10,000, 10,000 से 13,000, 13,000 से 16,000 एंड 60 मोर देन 16,000। तो यहाँ पे कुछ फैमिलीज है उनकी इनकम के हिसाब से उन फैमिली के पास कितने व्हीकल है उन्हें यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो जीरो वाला है कि किसी के पास व्हीकल नहीं है, वो इस तरह से नंबर दिए गए हैं। जिनके पास एक व्हीकल है उसका नंबर ऐसे दिए गए हैं, जिनके पास दो व्हीकल है उनका नंबर भी ऐसे दिए गए, और मोर देन टू। तो इस तरह से कुछ फैमिली है उनके इनकम के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल दिए गए। तो हमें कुछ प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे दिए गए वो फाइंड करनी है। सपोज द फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज फर्स्ट वन अर्निंग रुपीज 10,000 बिटवीन 13,000 per month and owning exactly two vehicle. Second one earning rupees 16,000 or more पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल। तो इस तरह से कुछ प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं? तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कंसीडर इज इक्वल टू कितने हैं? तो कि 2,400 है। फर्स्ट वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली टू व्हीकल इज इक्वल टू कितने हैं? तो कि नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग टू व्हीकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो इतनी कितनी फैमिलीज है? तो कि 29 फैमिलीज है जिसमें अ, उनके पास जिसकी इनकम कितनी है कि 10,000 से 13,000 है, और उनके पास कितने दो व्हीकल है, उतनी 29 फैमिलीज है। तो डिवाइडेड बाय 2,400 इज इक्वल टू क्या आएगा? और सेकंड वन है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर पर मंथ एंड एग्जैक्टली वन व्हीकल इज। तो हमें पता है उसका आंसर क्या है कि नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग वन व्हीकल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। उसका आंसर 579 बाई 2400 इज इक्वल टू 193 डिवाइडेड बाय 800। थर्ड वन इज probability of a family earning less than rupees 7,000 per month and does not own any vehicle। तो उसका आंसर क्या आएगा? द नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग लेस देन रुपीज 7,000 per month and does not own any vehicle, total number of families is equal to 10 by 2,400 is equal to 1 by 240। थर्ड वन भी इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर है कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। ओके, 25 बाई 2,400 इज इक्वल टू 1/96, जहाँ पे हम कॉमन जो उसके फैक्टर है वो डिवाइड करके हमें इस तरह से उसका आंसर मिलेगा। एंड लास्ट में ये जो है कि अ फैमिली ओनिंग जीरो व्हीकल और वन व्हीकल, तो यहाँ पे इनकम नहीं दी गई, लेकिन हमें उसके जो जीरो और वन व्हीकल वाले हैं उनकी सारी की सारी फैमिली का हमें सम लेंगे। तो उसका सम किस तरह से हमें मिलेगा? तो कुछ इस तरह से मिलेगा, 10+0 1+2 +1 और उसका आंसर डिवाइडेड बाय 2,400। तो वह क्या आएगा? 2062 डिवाइडेड बाय 2,400 इज इक्वल टू 1031 बाय 1200। तो इस तरह से सारी की सारी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 6, रिफर टू टेबल 14.7 चैप्टर नंबर 14
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स इन मैथमेटिकल टेस्ट। तो यहाँ पे जो टेबल दिया गया है कुछ इस तरह से, तो उसको हमें फाइंड करना है कि लेस देन 20 मार्क्स है उन इन मैथमेटिक्स, उनकी टेस्ट जो ली गई थी उसमें कितने नंबर स्टूडेंट है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और मोर अबव। तो यहाँ पे हम पहले 20 मार्क्स से कम, 20 मार्क्स से कम तो मीन्स जो पहला वाला ग्रुप है 0 से 20, तो उनमें कितने 7 स्टूडेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, 60 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा कहाँ से ले सकते हैं हम, या 50 60 के बाद जो ग्रुप दिया गया है 60 टू 70 और 70 अबव है, तो हमें कितने 15 और 8 कितने हुए, तो क्या 15 ओवर 23, तो 23 स्टूडेंट है वो मोर देन 60 मार्क्स है। तो यहाँ पे हम उसकी दोनों की प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 90, प्रोबेबिलिटी अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 marks is equal to number of student who obtain less than 20 marks divided by total number of student is equal to 7 by 90. Second one, the probability of student obtain 60 mark or above, तो कितने हैं, तो दो 16 से ज़्यादा है, उसके हम टोटल नंबर से डिवाइड करें, मीन्स 15 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू क्या होगा 23 बाई 90। एग्जाम्पल नंबर 8, रेफर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 14.2, व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लाइज। तो यहाँ पे जो टेबल दिया गया इस तरह से, distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follow, कि यहाँ पे कुछ 40 जैसे कुछ इंजीनियर दिए गए हैं और उनका जो वर्क प्लेस है वहाँ से लेके उसका जो रेसिडेंट है उसका जो डिस्टेंस है यहाँ कुछ दिया गया है अलग अलग। पहला वाला है तो उसके ऑफिस से उसका घर का डिस्टेंस कितना है, तो 5 है, दूसरा वाला है उसका 3 किलोमीटर, तीसरा वाला 10 किलोमीटर, इस तरह से 40 के 40 जो इंजीनियर है उसके होम डिस्टेंस है यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है कि पहला है कि लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, तो यहाँ पे हमें 7 किलोमीटर से कम जिसका भी होम डिस्टेंस है ऑफिस से वो हमें फाइंड करना है। तो 40 से कम कितने हुए, तो कि 5 है वो भी कम, 7 से कम, 3 भी है वो भी 7 से कम, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे नंबर हम फाइंड करेंगे। मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, तो 7 और 7 से ज़्यादा, और विथ इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, और हाफ किलोमीटर से भी हाफ किलोमीटर है तो हम फाइंड करेंगे। तो इसकी सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, टोटल नंबर ऑफ engineers is equal to 40। लेट अस अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोइंग, जो हमें डेटा किया है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, 2 2 3 3, फिर इस पूरे की पूरी जो सीक्वेंस है यहाँ पे हम उसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी एन इंजीनियर लाइज लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, तो वो क्या होगा, द नंबर ऑफ इंजीनियर हु लाइज लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स इज इक्वल टू कितने हैं, तो क्या 9 है, जो 7 किलोमीटर से कम, तो वो 9/40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। और न जो दूसरी है कि प्रोबेबिलिटी एन इंजीनियर लाइज मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस, मीन्स यहाँ पे जो 40 स्टूडेंट 40 इंजीनियर दिए गए हैं उनमें से 9 ऐसे हैं कि जिसका डिस्टेंस है ऑफिस टू होम इज लेस देन 7, तो 7 और 7 से ज़्यादा कितने हुए, तो हम 40 में से 9 निकाल दे तो कितने हुए 31, तो उसका आंसर क्या आएगा, इस तरह से आएगा 31/40। और विथ इन हाफ किलोमीटर, तो हाफ किलोमीटर वाला कोई भी इंजीनियर उसका हाफ किलोमीटर में उसका रेसिडेंसी नहीं है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0, 0/40 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह से सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो आप दूसरे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे होमवर्क में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपको करने हैं, सॉल्व करने हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 है वो आपको खुद से एक्टिविटी करनी है, और बाकी के जो एग्जाम्पल है आप उसे सॉल्व करना है।
तो जो एक्सरसाइज नंबर 15.1 है उसमें से एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13 है वो आपको खुद से करने हैं। अगर इसमें कुछ भी डाउट आपको लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हो।